Good evening, namaste, and a warm welcome to all. I'm your host this evening, Dr. Supriya Anand, and we are in our next series of medical webinar, which is hosted every week by A2V Insurance India Limited by SafeTree. And as you all know, हम last 4 हफ्तों से ये medical webinar conduct कर रहे हैं, and we have had very eminent speakers who had been talking about this COVID tsunami. In our first week, we had Dr. Parveen Bhatia, a renowned laparoscopic surgeon from Sir Gangaram Hospital and Bhatia Global Hospital. Then we had Dr. T.R.D. Patro, a renowned diabetologist who was unraveling the mystery of diabetes and COVID. Then we had Dr. Matthew Varghese talking about the timelines on COVID. And last week, it was myself explaining about breathing exercises and COVID. जैसे कि आप सब जानते हैं that this COVID virus is a very, very mysterious virus. It's so called that it has a scattering attack on our lungs, but मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सिर्फ एक respiratory virus है, because all our medical doctors are seeing a very profound effect of this wicked virus on our other body systems. And today we've also seen कि हमारे और body systems में mainly our heart is also getting affected along with the lungs. Joining today this evening with us, we have a very, very eminent cardiologist, Dr. Yugender Singh Rajput, and to welcome sir, welcome on SafeTree Forum. And thank you for sparing time. And sir has been tremendously busy, and sorry, he had a very medical emergency with a patient. So that's how things got delayed. Welcome, sir. Welcome aboard. And telling about sir, he's an interventional cardiologist who is dealing with, all kind of coronary artery diseases and peripheral vascular diseases, valve replacements, and pacemakers and ICD implantation. His field of expertise and his field of interest is all stress dobutamine test and about angiograms. And he has seen over 5,000 patients, and he has about 2 decades of experience. So welcome, sir, and over to you, sir. Thank you, Dr. Supriya, for a nice introduction. I am Dr. Yugender Singh Rajput, intervention cardiologist in Gurgaon. And as आपने जैसे सही बोला कि we are facing a lot of trouble due to this COVID pandemic. So under this, COVID tsunami, we will talk something about, association of COVID with the heart problems. So we will discuss something very, very common problems which people are facing nowadays because of, there is a spike, and the second waves are already is on the peak, and it's already is keeping down, and people are more coming with the post-COVID complications, and these post complications are mainly people are suffering from various organ involvement, which includes primarily the lungs, and the secondary is the cardiac problem. So as a cardiologist, our duty is to make people aware about that how these COVID complications So you've gone on mute. Am I live now? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we'll discuss how the COVID is going to affect heart. So हम बात करते हैं, जैसे आप everyone knows that COVID is everywhere now. Everybody is almost like, मैं एक जनरल एक टर्म बनाऊं तो हमारी अभी पॉपुलेशन almost 20% is affected by the COVID. People are registered, non-registered. अगर हम ऐसे देखें तो इंडिया में काफी लोग रजिस्टर नहीं है, 2 to 3 crore people are actually, the government data is saying 2 to 3 crore people, but we consider it almost 10 times of the current data that people are suffering from the COVID. Can you hear me, Dr. Supriya? Hello? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Yeah. So we'll go through the some few aspects of the COVID. The COVID-19 basically क्या करता है? Basically, it is a pulmonary. It affects the lungs mainly because
कोविड इज जस्ट ए वायरल इलनेस जो किसी भी तरीके के कॉमन वायरल इन्फेक्शन की तरह ही हमें अफेक्ट करता है. इट गोज थ्रू दी योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आपकी सांस के थ्रू. इट गोज इनटू द लंग्स and your throats and it multiply there, and after the multiplications it form antibodies in your bodies that are actually protected for you. But meanwhile कुछ लोग जो होते हैं, there are some people which are actually vulnerable for more profound infections, जैसे कि किसी भी वायरल इलनेस में होता है. अभी इसके पहले सार्स भी आया था, इसके पहले H1N1 भी था. So there are various presentation and तो उसमें भी था. एंड किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह प्रिवेंट करता है. उसी कंटेस्ट में हम ये बता सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है इसके बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं, दे आर बेसिकली अफेक्ट्स योर हार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो हम हार्ट की बात करते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है. सो इफ वी गो इनटू द हार्ट, देयर आर वेरियस स्टडीज डन हाउ इट अफेक्ट्स. इट कैन अफेक्ट हार्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स, जो आजकल मेजर कंसर्न है लोगों का, बिकॉज इट एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम एंड दैट इम्यून सिस्टम वंस इट गेट ओवर एक्टिवेट इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन योर बॉडी, स्पेशली इन योर हार्ट, एंड दैट कैन लीड टू एक्यूट हार्ट अटैक, जो एक मेजर इश्यूज आजकल निकल के आ रहा है. दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इट कैन फॉर्म क्लॉट्स इन योर venous system or in your legs, and these clots can migrate in your lungs and then it can lead to a pulmonary embolism. ये एक तरीके की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसमें क्लॉट्स वीनस सिस्टम में बनके हमारे लंग्स में चला जाता है, एंड पीपल कैन हैव ब्लॉकेज इन योर लंग आर्टरीज एंड दैट लीड टू दी सडन हाइपोक्सिया, या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. हेलो. सो इस तरीके की ये जो दो मेजर इश्यूज क्लॉटिंग के साथ आ रहे हैं पोस्ट कोविड, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स, एंड पीपल नाउअडेज आर कमिंग विद वेरियस रिपोर्ट्स. लाइक डी डाइमर की रिपोर्ट हमारे पास लेके आते हैं, कहते हैं जी डी डाइमर हमारा काफी हाई चल रहा है, एंड वी थिंक दैट या डेफिनेटली दिस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन लीडिंग टू एक्यूट थ्रोम्बोसिस एंड अ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. इसी तरीके से आजकल हमारे पास कई पेशेंट्स आ रहे हैं जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं आफ्टर पोस्ट कोविड, एंड काफी एक वीक या लाइक एक मंथ हो चुका है उनको रिकवरी के बाद में, एंड नाउ आफ्टर द रिकवरी दे आर प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन, उनको सांस फूल रही है, उनको लगता है कि अभी भी परसिस्टेंट हमारा कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है. बट जब हम उनका ईसीजी या इको कराते हैं तो वी फाउंड दैट देयर हार्ट इज समहाउ डैमेज बिकॉज दे हैव सफर्ड फ्रॉम एनी मेजर और माइनर हार्ट अटैक. सो दिस इज ए मेजर चैलेंज विच आर कमिंग टू ए कार्डियोलॉजिस्ट नाउअडेज, बिकॉज जो ब्रेथलेसनेस है वो हमें डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेदर इट इज ए कोविड रिलेटेड ब्रेथलेसनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग और इट इज ए कार्डियक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग. सो देन इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट होता है एज ए कार्डियोलॉजिस्ट. तो हमारे लिए हमारे पास काफी सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम करा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं और कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, जो अगर रेज्ड होते हैं देन डेफिनेटली वी जंप इनटू कंक्लूजन कि दिस इज ए कार्डियक इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन. सो इस तरीके से कोविड हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है. थोड़ा बेसिकली मैं बता देता हूं कि देयर आर 3 phases ऑफ इन्फेक्शन इन एनी कोविड. इसमें हम बोलते हैं अर्ली इन्फेक्शन स्टेज, दूसरा होता है पल्मोनरी स्टेज, और थर्ड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेज. सो पहले मैं ऐसे बता चुका हूं कि पहले इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, सेकेंड में लंग्स इन्वॉल्व करता है, थर्ड में एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स आता है जिसके थ्रू ये बॉडी की कई पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है. यूजुअली जो हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता है दिस इन्वॉल्व मोस्टली इन द थर्ड स्टेज बिकॉज इट इज ए इम्यून मीडिएटेड हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, और हम बोल सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द योर बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट्स. सो अब एज ए लेमैन हम ये जानना चाहेंगे या लोग जानना चाहेंगे कि ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जाएं. लोगों को वैसे ही फियर है हॉस्पिटल जाने का, लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं, हॉस्पिटल जाने से इसलिए डरते हैं कहीं उनको फिर से कोविड ना हो जाए. तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लोग आजकल टेलीमेडिसिन का फायदा ले सकते हैं. दे कैन कंसल्ट टू ए डॉक्टर थ्रू द टेलीमेडिसिन. अगर आपको लगता है तो छोटे मोटे क्लिनिक्स या हॉस्पिटल में जाके एटलीस्ट यू कैन गेट देन योर ईसीजी. सो बेसिकली द investigation start from your basic test which includes the ECG, the electrocardiogram. अगर हम अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएं और हमें अगर कोई चेस्ट पेन की कंप्लेन है
तो बेसिकली वी कैन पिक अप मेनी ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग मेजर हार्ट अटैक। इसके बावजूद भी अगर चेस्ट पेन परसिस्ट करता है या आपको कोई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कोविड से रिकवर हो गए मगर हार्ट अटैक से आपकी जिंदगी को खतरा हमेशा बना रह सकता है। तो इस तरीके के लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है अगर उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी है कि दैट कैन बी 80 to 90% कैन बी क्योर इफ यू रीच टाइमली इन द हॉस्पिटल। So we'll discuss something about कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम दिस कोविड हार्ट को अफेक्ट कर सकती है। मैंने तो आपको सिर्फ दो बातें बताई, एक तो थ्रोम्बोसिस की रिस्क होती है, दूसरी दिस कोविड-19 कैन डायरेक्टली आल्सो डैमेज योर हार्ट, जिसको हमारे लेमन लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि आपके हार्ट के अंदर स्वेलिंग कर सकता है, दैट इज वी कॉल्ड एज मायोकार्डाइटिस। एक प्रकार का आपका वायरल का इन्फेक्शन है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके हार्ट को स्वेलिंग दे सकता है। दो द डाटा आर वेरी लिमिटेड, लेस देन 0.01% पीपल आर सफरिंग। मतलब हम एक बात करेंगे 1000 या 10,000 में एक लोग को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इनडायरेक्टली बोले हम तो हमने जैसे डिस्कस किया कि इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसिस के कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें हमने बताया कि हार्ट किस तरीके से हो सकता है, एक तो मायोकार्डाइटिस हो सकती है या आपकी धड़कन ऊपर नीचे जा सकती है। इसके बारे में मैं एक ही बोलूंगा कि आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद, उन लोगों के एक ही क्वेश्चन होते हैं, सर मेरी जो हार्ट रेट है इट्स रेंजिंग फ्रॉम समटाइम इट गोज बिलो 60 to 50 40 एंड कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी धड़कन हमेशा ही 120 130 रहती है जबकि पहले मेरी 70 80। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएशन इन हार्ट रेट, सो वी कॉल्ड एज अरिथमिया। दीज आर वेरी कॉमन पोस्ट कोविड। कुछ लोगों को जैसे हमने बताया कि हार्ट कमजोर हो सकता है तो दे कैन प्रेजेंट एज हार्ट फेलियर। स्पेशली ये प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम के साथ सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं उनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, या उनको स्टेंटिंग हुआ है, हाइपरटेंशन हुआ है या बाईपास हुआ है पहले, तो ऐसे लोगों को पोस्ट कोविड में हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन लोगों को ब्रेथलेसनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है पैरों में, तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। कुछ लोगों को स्ट्रोक्स भी हो सकता है, जैसे कि क्योंकि थ्रोम्बोसिस की रिस्क ज्यादा है तो कुछ लोगों को पैरालिसिस के स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोग आजकल प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है इनसे बचने के क्या उपाय हैं और हम इनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो इन्फेक्शन से बचना है। जैसे कि हमेशा से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 1.5 year वी आर स्ट्रेनिंग या वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन पीपल, और हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने आप को पहले तो इन्फेक्शन होने से बचाइए, कीप जो हमारे 3 है, मास्क को रखिए, हैंड वॉशिंग करिए, इन सोशल डिस्टेंसिंग, दीज आर द इंपॉर्टेंट। बिकॉज कोविड का कोई भी इन्फेक्शन आपको हो, सब क्लिनिकल या काफी फ्लोरेड या आपको बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड इन्फेक्शन हो, किसी तरीके का इन्फेक्शन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है एंड दैट इम्यून सिस्टम कैन लीड टू कार्डियक प्रॉब्लम। सो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली किसी भी तरीके की अगर कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करिए। डू नॉट इग्नोर योर सिम्टम्स, क्योंकि पोस्ट कोविड हो या प्री कोविड हो या कोविड तो आके चला जाएगा, बट रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्डियक प्रॉब्लम्स। क्योंकि जितने जल्दी से जल्दी आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में जाके प्राइमरी ट्रीटमेंट लेंगे, आप उतना ज्यादा हार्ट को सेव कर सकते हैं। द गोल्डन पीरियड वी कॉल्ड एज 30 मिनट्स। अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, अगर 30 मिनट्स के अंदर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं एंड यू गेट द ट्रीटमेंट, आप सारे हार्ट को और सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाए जा सकते हैं। बट इफ यू गो बियॉन्ड द टाइम लिमिट और हमारे विंडो पीरियड के बाहर आप हॉस्पिटलाइज जाते हैं तो चांसेस ऑफ मोर्टेलिटीज आर वेरी हाई एंड हम उतना कम आपके हार्ट को बचा पाते हैं, दो फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, आप लोग अगर मैंने जैसे बोला कि अगर आपको फियर है टू गो टू द हॉस्पिटल्स, सो डेफिनेटली नाउअडेज टेलीमेडिसिन किसी भी डॉक्टर के थ्रू जो क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस हैं, आप उनसे एक मेडिकल टेली कंसल्टेशन लीजिए। आप अपने सिम्टम्स को इमीडिएटली उनको बताइए किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे को सीने में दर्द है,
या मेरी हार्ट बीट काफी फास्ट और स्लो चल रही है, इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस को आप उनको बताइए तो डेफिनेटली दे विल गिव यू सोल्यूशन। हो सकता है कि वो आपको बताएं कि हॉस्पिटल जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। थर्ड थिंग है कि आपको जो मेडिसिन पुरानी चल रही है या आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, लाइक डायबिटीज है, आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, या फिर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई आपको पुराना बाईपास हुआ है, तो इस तरीके की मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अगर आप डॉक्टर के पास किसी कारण से फॉलोअप के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो दीज मेडिसिन हैव टू कंटिन्यू, बिकॉज आप इन मेडिसिन को अगर कंटिन्यू नहीं रखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है कि आपके अंदर ये जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिसिन और नॉन कंप्लायंस ऑफ मेडिसिन ये प्रेसिपिटेट हो जाए। सो द थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू स्टिक टू योर मेडिसिन। जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं तो कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, सो यू शुड कंटिन्यू। इफ यू आर कोविड पेशेंट ऑल्सो डू नॉट स्टॉप इट, बिकॉज आपको कोविड की मेडिसिन लेनी पड़ रही है इसलिए उसको बंद नहीं करना है। इफ यू आर टेकिंग ए डायबिटीज मेडिसिन, बेटर टू कंटिन्यू एंड कंट्रोल इट, बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आप उसे शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस, एंड वो जो वायरस है आपके शुगर में काफी मल्टीप्लाई करेगा एंड दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। एंड इसी तरीके से जो पेशेंट पोस्ट हार्ट किसी कार्डिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को अपनी जो कार्डिक मेडिसिन है दैट हैज टू कंटिन्यू। सो दीज आर द फ्यू मेजर्स व्हिच कैन बी डन फॉर प्रिवेंशन, एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, इन केस आपको कोई सिम्टम्स होते हैं डेफिनेटली डॉक्टर विल एडवाइज यू फर्दर ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो डेफिनेटली पीपल विल गो एंड दे विल गेट इमीडिएट अटेंशन, प्रॉब्ली एंजियोग्राम कैन बी डन एंड कैन बी सीन इजीली कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक है एंड कैन बी फिक्स इजीली। तो इस तरीके के काफी इंटरवेंशन होते हैं जिनसे आप बचिए नहीं, बट ट्रीटमेंट लीजिए, यही एक इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरी तरफ से। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस लोगों को हो रही हैं, बट कैन बी मैनेज इन टाइम अगर आप टाइमली उन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हमारा रोल काफी ज्यादा आ रहा है आजकल, बिकॉज ये भी हमने देखा है कि जो लोग कोविड से सफर कर रहे हैं उनमें जो मॉर्टेलिटीज हो रही है ऑलमोस्ट नॉट रिलेटेड टू लंग। अगर हम देखें कि 100 लोग अगर लंग्स के कारण इफेक्टेड हैं तो जो मॉर्टेलिटी का परसेंटेज है कार्डियक में करीब 30% पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स और एनी सॉर्ट ऑफ ए मैसिव हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक। सो इट इज ए बिग चंक ऑफ नंबर्स। अगर हम देखें 100 लोगों में से 30 लोग भी कार्डियक प्रॉब्लम से डाई हो रहे जो विच कैन बी प्रिवेंटेबल और कैन बी सेव्ड, दीज लाइफ कैन बी सेव्ड। सो अगर हम इन लाइफ को बचा सकते हैं तो बेटर टू टेक मेडिकल अटेंशन। सो पोस्ट कोविड में हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में आने वाली हैं, बिकॉज इट इज न्यू वायरस फॉर एवरीवन, इट इज न्यू फॉर यू, न्यू फॉर ऑल डॉक्टर फेटर्निटी एज वेल। उसके क्या कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में आने वाले हैं उन पर हम काम कर रहे हैं, ट्राई टू मैनेज दिस कॉम्प्लिकेशन एज मच एज पॉसिबल। As nowadays there is a hot topic is going on because the fungal infection is, people are suffering from fungal infection because of steroids, or because of there is a controversy related to using the oxygen due to antibiotics. There are various hypotheses are there behind having fungal infection. The same thing is that there are hypotheses if you are using excess of medicine, any medicine can also lead to cardiac problems. So better to take medicine with consultation to any physician. Do not do over the counter treatment like आप कोई मेडिसिन फार्मेसी से लेके मत खाइए, आप कंसल्ट करिए किसी भी फिजिशियन जनरल प्रैक्टिशनर से एंड देन टेक ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्योंकि ओवर द काउंटर जो ट्रीटमेंट है दे आर नाउ ट्रेवलिंग टू द डॉक्टर्स बिकॉज देयर आर मेनली स्टेरॉइड बेस्ड ट्रीटमेंट। लोगों को लग रहा है स्टेरॉइड इज मैजिक ड्रग, दे आर प्रिस्क्राइबिंग each one people, though it is not indicated COVID patient. There are different category of people who need steroid, and steroid is useful in few people but it's harmful for many people. So better to be caution using while using this steroids. So आप एक डॉक्टर से सलाह लेके ही प्रॉपर्ली स्टेरॉइड यूज करें, क्योंकि स्टेरॉइड का इफेक्ट हार्ट पे भी होता है एंड अदर सिस्टम पर भी होता है। सो एक स्टेरॉइड भी है जो काफी कॉमनली यूज हो रहा है, which should be avoided if necessary. Definitely under the supervision of physician, it should be taken with proper guidance. So these are the recommendations, and abhi we will definitely going to welcome new questions, and we'll try to answer as many as question. Over to you, Dr. Sri.
Thank you very much, sir, for such an informative talk. And I would say कि बहुत ही simple, सरल भाषा में आपने you've really touched the hearts of everybody. My Thank you. first question, which is coming up, is कि during this COVID-19 period, when people are at home, हम किस तरह से अपने heart को healthy रख सकते हैं? See, basically, this is a mode of prevention. What you are talking about is a prevention. हम किस तरीके से heart को healthy रख सकते हैं? This is not like COVID. I must say कि हम या तो COVID हो या ना COVID हो, we should keep our heart healthy all the times. Because we know that this time we are facing the COVID era. So हम लोग बाहर jogging के लिए नहीं जा पा रहे हैं. So, but the fundamental points will remain all the time same. So हम हमेशा बोलते हैं कि lifestyle change is very important to keep your heart healthy. उसमें सबसे important चीज आती है कि daily exercise करना. At least आप 30 minutes to 45 minutes every day you should do exercise. अपने heart को healthy रखने के लिए. Keep your heartbeat higher, at least 150 तक आप heartbeat को once in a day पहुंचने की कोशिश करें. इसको actually आपको बोलते हैं से कि आपको ये पता चलता रहे कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है. द सेकंड थिंग इज द हेल्दी डाइट. आपको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें यू शुड इंक्लूड प्रोटीन्स प्रॉपर. देयर शुड बी इंक्लूड ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, and minerals as well. So this should be a balanced diet, including your fruits should be there. Third thing is to cut down and stop smoking. If you are a smoker, better to stop smoking. And if you are taking alcohol, cut down your alcohol contents. The fourth thing is the salt content. If you are a hypertensive or anything, reduce your salt content, because salt is not very good for the heart. And the fourth thing is कि आप अपनी जो medicines ले रहे हैं किसी और प्रॉब्लम के लिए, like hypertension या diabetes, और भी कोई काफी सारी प्रॉब्लम्स होती, that medicine you should continue, because these things will keep your heart healthy. Because आप उनको बंद कर देंगे और आपका बीपी persistently high चल रहा है, then it's very difficult to keep your heart healthy. So these are the few basic tips by which you can keep your heart healthy. सर, आपने जैसे बताया है कि of course it's a respiratory virus, but does it in all cases affect the heart? No, as I told you in my lecture as well, that कि जो percentage of involvement of heart is very limited. क्योंकि newer studies and articles आ रहे हैं. Some Chinese and Japanese studies are there because it was found first time in the China and the Europe से जो studies आई हैं, they are found almost, there are variation, 10 to 20% people are suffering from heart problem. देखिए, it is a respiratory illness. So 90 to 95% people are suffering from the respiratory. जो upper respiratory हो सकता है, throat, गला या कोई ना कोई involvement होना ही होना है. लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इवन 90% से ज्यादा लोगों को लंग होते हैं. जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है 10 to 20% है. वेरिएशन है, एंड दैट वेरिएशन इन्वॉल्व्स एक्यूट मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक्स, rhythm disorders, and clotting, formation of clots in the veins. So these are the few variation in the heart which can be 10 से 20% के लोगों को. तो एक एज्यूम करें कि 100 लोगों में से 10 से 20 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट्स अ बिग नंबर. Sir, what is the minimum heartbeat which is required? Oh, so this is a very tricky question. Basically जो एक स्टैंडर्ड हार्ट बीट का वेरिएशन है वो हमें जानना जरूरी. कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज दी कट ऑफ. सो वैसे गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि 60 से लेके 100, मतलब 60 to 100 इज द रेंज. सो आपकी 60 के नीचे नहीं जानी चाहिए और 100 के ऊपर नहीं जानी चाहिए हार्ट बीट इन ए नॉर्मल सिनेरियो. नॉर्मल सिनेरियो मैं कहना चाहता हूँ जब आप जाग रहे होते हैं और आप कुछ काम कर रहे होते हैं. Definitely when you are sleeping your heartbeat goes below 60. When you are doing exercise it can go beyond 100. So within a physiological limit, हम बोलें कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो इस बीच में आपकी हार्टबीट 60 to 100 होनी चाहिए. अब डेंजरस कट ऑफ क्या होता है? एनी हार्टबीट बिलो 35 या 40 इज ऑलवेज डेंजरस, और एनी हार्टबीट बियॉन्ड 150 to 160 एट रेस्टिंग इज ऑलवेज डेंजरस. इनके जो कट ऑफ है काफी रेंजिंग है. जो डेंजरस पॉइंट है हम बोलें कि रेड अलर्ट या रेड अलर्ट जो जोन है वो 150 के ऊपर नहीं होनी चाहिए रेस्टिंग में, और आपकी
हार्ट बीट लेस देन 35 के नीचे नहीं जानी चाहिए. सो दीज आर द डेंजरस मार्क्स. अदरवाइज आपकी हार्ट बीट 60 to 100 इज परफेक्ट. Sir, what to do in case of heart attack if the doctor is not available? Yeah. See, basically, first is the recognition whether you are having heart attack is है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि for you a symptom can be a heart attack, for a doctor could not be, it's just a gastritis, और वाइस वर्सा भी हो सकता है दैट कि आपको लग रहा है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी है और हार्ट अटैक हो निकलता है. तो रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहले अपने इंपॉर्टेंटली ये जानिए कि सिम्टम्स आपका हार्ट अटैक है. उसके बाद अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो बड़ा मुश्किल सा काम है. कोई देखिए इसमें इस मामले में हम लोग ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आप इकोस्पिरिन खा लीजिए, सॉर्बिट्रेट अपने घर पे रखा करें. एक मेडिसिन आती है सॉर्बिट्रेट बोलते हैं. You can keep below your tongue and go to immediately go to a nearby hospital so that at least ECG हो सके आपका. तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, आपको सीवियर चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रहा है, टेकन ए सॉर्बिट्रेट अगर आपके किसी के घर में पड़ी हुई है, गो इमीडिएटली टू नियर बाय हॉस्पिटल. क्योंकि आज के जमाने में डॉक्टर मिले ना मिले, मतलब फोन पे अवेलेबल ना, पर हॉस्पिटल्स दे आर, सम हॉस्पिटल्स आर वर्किंग 24 आवर्स. एटलीस्ट आप वहां जा सकते हैं एंड वो आपको कोई ना कोई बेसिक ईसीजी कुछ टेस्ट करके आपको बताएंगे कि whether you are having heart attack or not. Sir, what are the tests which are recommended post recovery from COVID? Because normally we are seeing that heart diseases are like a fallout in the post recovery period. So what are the basic tests you recommend one should get it done even if you have recovered, at home in home isolation post COVID? Yeah, so very good question, Dr. Supriya. Basically क्या हो रहा है ना कि अभी इसकी कोई गाइडलाइंस फिक्स नहीं है. मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि क्या है, कोई भी चीज रिकमेंडेशन देने में क्या होता है ना कि देयर आर पीपल ऑफ करोर्स. अब मैं कुछ बोलूं तो देन इट बिकम ना लैंडमार्क. तो लैंडमार्क्स जो होते हैं दे डिसाइडेड बाय द गाइडलाइंस, ICMR, WHO, ये लोग देते हैं कि जी पोस्ट कोविड ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस फिक्स नहीं है कि पोस्ट कोविड क्या करना. बट डेफिनेटली देयर आर जनरल कंसेंसस ऑफ द डॉक्टर्स who actually seeing the patient and they think that these tests should be done. So ऐसे ही हमारा भी एक कंसेंसस है कार्डियोलॉजी सोसाइटी का कि that at least अगर आप पोस्ट कोविड रिकवरी करते हो, get done your basic cardiac checkup done in the form of blood test and some TMT and echo. So at least आप अपना एक स्ट्रेस इको करवा सकते हैं so that at least आपको ये पता रहेगा कि आपके हार्ट के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं हुई. Second thing is certain blood tests are there like a D-dimer and some ferritin levels and the troponin levels which can also guide us कि कोई आपको हार्ट में कोई इंसल्ट हुआ है कि नहीं, कोई एम्बोलिज्म या क्लॉटिंग फैक्टर आपकी बॉडी में बना है. सो दे आर अ बेसिक टेस्ट which need to be done post recovery. So at least एक बार आप करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लॉटिंग्स कुछ नहीं हुआ है. सेकेंड थ्री है आपने एक स्ट्रेस टेस्ट अगर अपने लिए करा लिया तो that is sufficient to diagnose whether any heart blockages has developed or not. So these are recommended from the cardiac side. Sir, when you're talking about these tests, what is the basic time framework कि इनको कब कराना चाहिए? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि people had COVID 2 months before and after 2 months suddenly they had cardiac arrest and things like that. So किस phase में कराना चाहिए? क्योंकि post COVID हम D-dimer और ferritin levels को high देख रहे हैं clinically. So what is the recommended time framework which is a safe zone for us to get? And which will be a foolproof marker? Basically क्या होता है ना कि वैसे तो पोस्ट रिकवरी 15 डेज कोई भी एक्सरसाइज जनरली रिकमेंडेड नहीं होती हैं, एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस. क्योंकि क्या होता है कि देयर इज द कोविड वायरस लीड टू डीजनरेशन ऑफ मसल्स फाइबर्स एंड अगर आप उसको डीजनरेशन के दौरान अपनी मसल्स को स्ट्रेन करते हैं तो देन इट लीड टू फर्दर डीजनरेशन. एंड कई लोगों को बहुत फटीग होता है, इट्स लाइक आप फटीग में और फटीग देना चाहते हो मसल्स के लिए, तो वी डोंट रिकमेंड. सो यूजुअली इट इज रिकमेंडेड कि आप तो आफ्टर 4 वीक ऑफ पोस्ट कोविड रिकवरी इज रिकमेंडेड. सर जब आप फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सो पोस्ट कोविड हम किस टाइम से हम बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट 15 डेज पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं? सो व्हाट इज द टाइम फ्रेमवर्क व्हेन दे शुड स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी और दे शुड गेट ऑन टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम
because we've had people who are gym freaks and they feel कि हम जल्दी से जल्दी we should be hitting the gym and going back and exercising. So medically, what is the time framework which is a safe zone for us to get back to physical activity and exercises? सी, मैं आइडियली बताऊं, कोई फ्रेमवर्क हम दे नहीं सकते इसमें कि देखो ये जो वायरस है ये डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए काम कर रहा है. फॉर सम इट्स वेरी एसिम्प्टोमेटिक, किसी को कुछ पता नहीं चलता, दे आर लाइक हैविंग कोविड बट एसिम्प्टोमेटिक. कुछ लोग जो है मॉडरेटली इन्फेक्टेड हैं, उनको पता रहता है थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, सर्दी खांसी जुकाम, एंड दे रिकवर. सम पीपल आर रिकवरिंग फ्रॉम वेरी सीरियस इलनेस ऑफ कोविड. सो आई मस्ट से कि डिफरेंट कोविड में डिफरेंट टाइम फ्रेम है. इसमें कोई ऐसी टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि 2 वीक्स हम बोल दें या 4 वीक्स हम बोल दें फ्रॉम द इन्फेक्शन टाइम. वो हम गाइडलाइंस नहीं दे सकते. बट हाँ ये बोल सकते हैं कि जब आप रिकवर कर जाएं, आपको लगे कि आपको कोई माइल्जिया नहीं है या आपको कोई बॉडी एक नहीं हो रहा है, आप एटलीस्ट आपको कोविड नेगेटिव होने के 15 डेज बाद तक भी आपको माइल्जिया नहीं हो रहा है, लाइक नेगेटिव टेस्ट होने के बाद में. सो यूजुअली रिकमेंडेड होता है वंस यू आर डायग्नोज, उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको 14 डेज मिनिमम लगेगा टू गेट नेगेटिव. उसके नेगेटिव होने के 15 डेज के बाद में if you are not having any serious symptoms like a body ache, myalgia और कुछ भी, then you can start your exercise gradually. We can't allow them to do extensive exercise immediately. We can ask them to participate in gymming and everything gradually, like थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए. Right, sir. So do patients with hypertension or previous heart stents are at risk with COVID vaccination? This is like you know बड़ा ही वैसा सवाल है. मतलब अभी प्रूवन कोई ऐसी हाइपोथेसिस नहीं है. सो यू आर टॉकिंग अबाउट वैक्सीन विद स्टेंट थ्रोम्बोसिस प्रॉब्ली, करेक्ट ना? यस सर, हाँ जी, हाँ जी. तो देखिए ऐसा कोई प्रूवन हाइपोथेसिस अभी तक आया नहीं है. हाइपोथेसिस इन द फॉर्म ऑफ की कोई ऐसी स्टडीज या कोई भी पब्लिकेशंस नहीं है कि हम वैक्सीन लगाते हैं तो लोगों को स्टेंट थ्रोम्बोसिस या क्लॉटिंग की रिस्क ज्यादा हो रही है. बिकॉज इट विल बी, अगर ऐसा कुछ होता तो people must have discouraged the vaccination. But हाँ डेफिनेटली कुछ एरिया में या कुछ पब्लिकेशंस या कुछ ऐसे हुए हैं रिसेंटली जिन्होंने ये बोला है कि पोस्ट वैक्सीनेशन कुछ लोगों को कुछ वैक्सीन से क्लॉटिंग फैक्टर हुए हैं. बट रियली दे हैव नॉट बीन लिंक्ड. उनको लिंक कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वेदर इट इज ए वैक्सीन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस और उस आदमी को किसी मेडिसिन बंद करने से थ्रोम्बोसिस है. सो इट विल बी ना डिस्करेज, मतलब मैसेज टू पीपल की लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहते हैं उनको अगर ऐसा लगेगा कि मुझे स्टेंट डला हुआ है, मुझे नहीं लगाना चाहिए, इट विल नॉट बी हेल्पफुल. सो मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई एसोसिएशन है नहीं. हाँ 1000 में या करोड़ों में किसी एक को हो जाए तो कोई लिंक नहीं मान सकते कि ये वैक्सीन लगाने से ही एक्चुअली थ्रोम्बोसिस या स्टेंट का प्रॉब्लम हुआ है. तो आई डोंट थिंक कि कोई रिलेशन है ऐसा, क्योंकि कुछ और चीजें हो सकती हैं जो कंट्रीब्यूटरी हो सकती हैं आपके स्टेंट को ब्लॉक करने में, आपको हार्ट को प्रॉब्लम देने में. सो आई डोंट थिंक कि वैक्सीनेशन इज एसोसिएटेड. Right, sir. Sir, can blood thinners be people who are on blood thinners, can they take vaccination or do they need to stop prior to the day they are planning to get vaccinated? Yes. So this is very good question. Nowadays I'm getting maybe 10-20 calls daily asking people मैं blood thinner करूं सर, क्या करूं. So once and all आपके इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि there are different type of blood thinners. ब्लड थिनर हम लोगों को बोलते हैं इकोस्प्रिन है या क्लोपिडोग्रिल है या टिकाग्लोरॉल है. ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जो स्टेंट के लिए बचाने के लिए लगाते हैं. इनको भी लोग ब्लड थिनर बोलते हैं. और एक ब्लड थिनर जो हम बोलते हैं वो है एसीट्रोन, वारफरीन, डेविगेट्रॉन. ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जो क्लॉट्स के लिए बोलते हैं ब्लड. सो ये 2 सेट ऑफ ब्लड थिनर्स होते हैं. बेसिकली लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता है कि कौन सा ब्लड थिनर क्या प्रॉब्लम देता है. सो इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल या कोई टिकाग्लोरॉल पे जो हैं लोग, उनको किसी तरीके से इन एंटीप्लेटलेट्स को बंद करने की जरूरत नहीं है. दे कैन डायरेक्टली गो टू द वैक्सीनेशन सेंटर एंड गेट इट डन. कोई जरूरत नहीं है आपको एक भी दिन बंद करने की. दीज वी कॉल्ड एंटीप्लेटलेट एजेंट्स. जो लोग ब्लड थिनर पे हैं दूसरे तरीके के, जैसे एसीट्रोम, वॉर्फ, डेविगेट्रॉन, एपेक्सावान या रिवोरेक्सावान, ये 5-6 तरीके के ब्लड थिनर हैं जो काफी ब्लड पतला करते हैं. ये जो 5-6 ब्लड थिनर होते हैं, इन ब्लड थिनर के मामले में हम बोलते हैं अगर एसेंशियलिटी है
हमें लगता है कि इस पेशेंट को इसको 1-2 दिन बंद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो वी स्टॉप इट फॉर 1 to 2 days एंड देन वी कैन अलाउ देम टू गो फॉर वैक्सीनेशन। अगर बहुत एसेंशियलिटी है, मुझे लगता है कि ब्लड थिनर देना ज्यादा फायदेमंद है वैक्सीनेशन के, तो ब्लड थिनर के साथ भी लगा सकते हैं, बट वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है इस मामले में, इस तरीके के ब्लड थिनर में कि उनको कुछ ब्लड टेस्ट करा के हम वी कैन अलाउ देम, वी कैन आस्क देम टू स्टॉप फॉर 2 days, स्पेशली दीज 4-5 जो मैंने नाम लिए दूसरी बार में, उन ब्लड थिनर को रोकना पड़ता है। हर ब्लड थिनर को रोकने की जरूरत नहीं, एंटीप्लेटलेट लाइक इकोस्पिन, क्लोपिडोग्राल और इनको बंद करने की कभी जरूरत नहीं, जो स्टेंट के लिए स्पेशली यूज होते हैं, उनके साथ आप डेली जा सकते हो कभी भी लगवाने के लिए। What is the basic level of the D dimer when we are saying कि जब patients जो hospitalized भी हैं वो घर आते हैं तो उनके D dimer levels बढ़े होते हैं, so what is the basic cutoff which says that they are in a safety zone now and they are not vulnerable to getting cardiac problems? See, कट ऑफ तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए डिफरेंट लेबोरेटरीज हैज सेट अप देयर ओन कट ऑफ, मतलब ये लेबोरेटरी का कट ऑफ है, कुछ जगह पे कुछ लेबोरेटरीज जो होती है 400 भी रखा है, किसी ने 0.5 भी रखा हुआ है। सो ये लैब पे डिपेंड करता है उनका, उनके रिएजेंट पे, और उन्होंने किस तरीके का कट ऑफ रखा है। मैं तो यही बोलता हूं कि जो उनका कट ऑफ है उससे बियॉन्ड अगर आपका डी डायमर जाता है, तो कोई भी डी डायमर, बेसिकली डी डायमर इज ए फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, मतलब आपके अंदर बॉडी में कोई क्लॉट बन के डिजोल्व हो रहा है, ये जस्ट इंडिकेटर, दिस इज डी डायमर का सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर क्लॉटिंग होके डिजोल्व हो रही है, एंड दैट डिजोल्व पार्ट वी कैन एनालाइज बाय द डी डायमर। तो अगर डी डायमर आपकी बॉडी में हाई है, इट मींस कि आपके अंदर जो क्लॉटिंग्स छोटे मोटे जो बन रहे हैं वो डिजेनरेट हो रहे हैं, एंड दे वी आर असेसिंग इन द फॉर्म ऑफ डी डायमर। तो इस डी डायमर को कभी भी इसकी कट ऑफ रेंज से जब ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली कभी भी जाए, एनी कट ऑफ विच इज लेबोरेटरी बेस्ड शुड टेक ए मेडिकल अटेंशन। So do patients of vascular etiology brain diseases are at risk with vaccination? डेफिनेटली वेस्कुलर एटियोलॉजी के साथ, जैसे वेस्कुलर एटियोलॉजी फॉर ब्रेन डिजीज मतलब स्ट्रोक, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, जिनको पैरालिसिस हो चुका है, वही मैं फिर आप बोलूंगा कि वेस्कुलर बॉडी के अंदर वेस्कुलर सिस्टम, चाहे वो हार्ट का हो चाहे ब्रेन का हो, लगभग लगभग सेम होता है। कोई भी वेस्कुलर एटियोलॉजी को कोविड के साथ एसोसिएट करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट का एसोसिएशन 10 to 20% है, इसी तरीके से 5 से 10% लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स भी पाए गए हैं पोस्ट कोविड। तो लोगों को हुए हैं स्ट्रोक्स, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन में क्लॉटिंग होने का प्रॉब्लम है। तो अगर क्लॉटिंग हार्ट में बन सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो फॉर्म इन द ब्रेन। सो द पीपल हु कैन हैव ए हार्ट प्रॉब्लम एज ए पार्ट ऑफ क्लॉटिंग, एज ए consequence of clotting, they can also have a stroke or paralysis because of clotting in the brain. सर जो लोग घर आके मतलब जो डिस्चार्ज हो गए हैं, they talk about fluctuating heartbeats, so is it something of a concern they should look into? मैंने आपको ड्यूरिंग टॉक में बताया था कि पीपल आर कमिंग विद दी डिफरेंट रिदम डिसऑर्डर्स, कभी किसी की धड़कन नीचे जा रही है, किसी की ऊपर जा रही है, रेंज मैंने आपको बताई थी 60 to 100 होती है, किसी की 60 के नीचे जा रही है परसिस्टेंटली, किसी की 100 के ऊपर जा रही है। सो बेसिकली हमने जो मेरा कंसेंसस है, जो जितने पेशेंट्स मेरे पास आए हुए हैं पोस्ट कोविड में, उनके बेसिकली रीजन वही रहे हैं, जिनकी धड़कन कम हो रही है। व्हाट वी हैव कम इनटू द कंक्लूजन कि उन लोगों को जो मेडिकेशंस मिली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड्स, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं ट्रांजिएंटली, मतलब थोड़े समय के लिए, जब उसका इफेक्ट बीन ऑफ हो जाता है, पल्स रेट वापस आए। तो कई लोग जिनकी धड़कन 45-50 थी, हमने उनकी जो पुरानी मेडिसिन थी, जैसे कि इवरमेक्टिन थी, कुछ लोगों को एजिथ्रोमाइसिन चल रही थी, किसी को HCQC भी चल रही थी पहले। दीज 3 मेडिसिन लीड टू दी हार्ट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं, हार्ट बीट को कम करती है मेडिसिन। तो कुछ लोग क्या, कई लोगों % पीपल जो लोग उसका इफेक्ट कुछ देर से आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी हार्ट बीट 40, 45 या 50, हो सकता है कि ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ 1 वीक और 2 वीक आपकी हार्ट बीट रिकवर कर जाए। हाँ, आपकी हार्ट बीट कभी भी 30-35 के आसपास जाती, डेफिनेटली यू गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, बिकॉज इट मे रिक्वायर ए टेम्परेरी मैनेजमेंट लाइक ए टेम्परेरी पेसमेकर, या फिर कुछ मेडिसिन से जिनसे हम आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली जो हार्ट बीट ज्यादा होने से, दे आर बेसिकली पोस्ट स्टेरॉइड
हो रहे हैं, कुछ लोगों को स्टेरॉइड को बंद करना है ग्रेजुअली, तो जैसे हम स्टेरॉइड बंद करते हैं बीपी फॉल होता है, तो रिफ्लेक्सली आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। कुछ लोग नेबुलाइजर पे भी रिकमेंडेशंस हैं, तो दे आर टेकिंग ड्यूलिन नेबुलाइजर या वो एस्थेलिन नेबुलाइजर चल रहा है, दैट एस्थेलिन परसिस्टेंटली उनकी पल्स रेट को हाई रखता है। सो देयर आर बेसिकली दो साइड की प्रॉब्लम है, या तो मेडिसिनल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से आपकी पल्स ज्यादा है, कम हो रही है। सेकेंडरी जो हो रहा है वो बेसिकली या तो आपके वायरस ने आपके हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट किया है, कई बार आपके हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो उससे आपके जो हार्ट में से भी कम हो जाए, उसको हम लोग उससे कई बार काफी हद तक अगर हार्ट इन्वॉल्व होता है तो कम भी हो सकती है। बेसिकली मैं ये बोलूं कि कुछ भी हो, वी हैव अ ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग, आइदर इट इज ए मायोकार्डाइटिस और ए ड्रग एसोसिएटेड, इट कैन बी ट्रीटेड टेम्परली एंड देन यू कैन बी ए नॉर्मल पर्सन लेटर ऑन। सो आप अगर कभी लगता है कि किसी डेंजरस मार्क पे पहुंच रहे हो, पल्स रेट ज्यादा है कम, तो इमीडिएटली गो टू द कार्डियोलॉजिस्ट, कहीं भी जाइए, वो आपको ट्रांजिएंटली में 2-4 दिन में आपको ठीक करके देन ही विल आस्क यू टू गो बैक टू योर होम। So just taking last two question. The first question is कि proning हम recommend कर रहे हैं especially COVID time में कि proning is recommended to improve the lung compliance. But people with pacemakers and with heart problems, do you recommend proning for them? See, pacemaker is simply a machine which we place here or here. तो देखिए प्रोनिंग से पेसमेकर का कोई कोरिलेशन नहीं है। बेसिकली अगर आपने रिसेंटली पेसमेकर डलवाया है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ, देन इट्स बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेसमेकर बहुत अर्ली पार्ट में लगाते हैं तो इट नीड्स सम टाइम टू गेट फिक्स्ड इन द चेस्ट वॉल। उस समय पे हम सिर्फ पोजीशन चेंजिंग को ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप उल्टा नहीं लेटिए, ऐसा नहीं करिए, वैसा नहीं करिए। बट ये प्रूवन ट्रायल में प्रूवन हुआ है कि प्रोनी हेल्प इन दी वेंटिलेशन और आपका ऑक्सीजन सिचुएशन इंप्रूव करता है। सो दोज हु हैव पेसमेकर, आईसीडी या कुछ भी उनको डला है, इफ इट इज ओल्ड, 1 साल हो चुके हैं ऑलरेडी आईसीडी डले हुए पेसमेकर को, दे कैन डू प्रोन पोजिशनिंग, नथिंग टू वरी, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस विद द फंक्शनिंग ऑफ पेसमेकर। हाँ, जो रिसेंटली 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर जिनको डला हुआ है पेसमेकर, they should be little bit cautious because it can lead to then a pull up of the leads जो हार्ट के अंदर पड़ी होती है। Otherwise there is a no interference with the other parameters, उसका सिर्फ एक ही fear रहता है कि वो पुल ना कर दे लीड, कभी आप पोजिशनिंग करते। So this is the only fear, otherwise they can also do with proper guidance, अगर लोग सही से गाइड करें, they can also do the proning. Sir, any worldwide statistics on COVID associated heart attack deaths which are there? Yes, we have. तो रिसेंटली हमारा कोविड का यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दे रिसेंटली पब्लिश फ्यू डेटास, और उन्होंने हमारे पास में डेटास भेजे, तो इट वाज स्केरी फॉर अस आल्सो, बिकॉज क्योंकि हमारे लिए भी अभी तक पता नहीं था कि कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं। देन यू नो सब्सिक्वेंटली द स्टडीज आर कमिंग एंड दे आर सेइंग कि एटलीस्ट उनके डेटास में 30 to 50% पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम इन पोस्ट कोविड। सो इट इज अ बिग नंबर, और अभी ये नंबर बढ़ सकता है क्योंकि वी आर गेटिंग मोर एंड मोर डेटास एंड यू नो लोगों के और भी हमारे पास में डेटास, और लोग और भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं कंट्रीज में, तो हमारे पास और आगे हमारे पास जानकारी आएगी। पर जो अभी करंट जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उनसे हम कुछ क्वेश्चनरी भेजते हैं, कहाँ कैसे हुआ, तो एटलीस्ट वेरी वेरिएशन, टू मच वेरिएशन। इंडिया में थोड़ा सा कम है अभी, इंडिया में 10 से 20% लोगों को है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में जो यूएस और यूके में थे वो करीबन 30 to 50% पीपल आर डाइंग और सफरिंग फ्रॉम सम और अदर कार्डियक प्रॉब्लम पोस्ट कोविड। सो दीज आर ए बिग नंबर, मतलब 100 में से 50 लोग अगर हार्ट से सफर कर रहे हैं पोस्ट कोविड, इज ए बिग नंबर। Sir, we've just got this question. What is the required healthy food for a heart patient if the heart is working only 20 to 25%? Sir, we lost you. Yes, बताइए। Sir, our question was, hear what is the required healthy food for a heart patient if the heart is only functioning 20 to 25%? Yes. So those people who are suffering from, you know, low cardiac output, like 20-25% जिनका pumping है, ऐसे लोगों के लिए जो diet recommendation, even in there is no special diet in post COVID or pre COVID, it is any usual diet जो हम usually normally recommend करते हैं, तो we advise कि low salt लेने चाहिए, because salt is leading to the more
फ्लूइड इनटेक, मतलब सॉल्ट के साथ पानी भी खिंचाता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो ऐसे लोगों को लो सॉल्ट लेना चाहिए, पहली बात। सेकेंड थिंग इज कि वाटर रिस्ट्रिक्शन करके रखना है। दो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा पानी पर जितना आपका यूरिन आउटपुट आ रहा है उसमें 500 और ऐड कर दीजिए, इतना आपको डेली पानी लेना है जिनका पंपिंग कमजोर है। एक जनरल मेजर होता है, मतलब आपने अगर 1 लीटर यूरिन पास किया है तो 1.5, अगर 2 लीटर यूरिन तो 2.5। मींस इट इज जस्ट गाइड टू टेक, क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग होती है, यूरिन आउटपुट अलग होता है। सो इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। थर्ड इज दी रिलेट टू फूड, दे शुड अवॉइड दी ऑयली इन स्पाइसी फूड, क्योंकि इन लोगों को कभी भी गैस्ट्राइटिस विद द मेडिसिन हो सकती है। ऑयली के कारण दे कैन हैव अ कार्डियक प्रॉब्लम अगेन, अगर स्टेंट डले हुए हैं, कुछ डले हैं, तो दे कैन हैव अ रिकरेंट ब्लॉकेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई स्पेशल डाइट आई डोंट रिमेम्बर, बट ये है कि रोज एक फ्रूट्स लीजिए। पोटेशियम थोड़ा सा, अगर किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो ज्यादा ले सकते हैं, पोटेशियम रिच डाइट ले सकते हैं। सोडियम कम लीजिए और ऑयली फूड कम करिए, कंडीशनिंग करिए, डेली एक्सरसाइज करिए। दीज आर द फ्यू रिकमेंडेशन। Sir, last question from my side this evening. Ki somebody who has come back home and still continues to be breathless, how will we distinguish कि वो cardiac issue नहीं है and it's just a respiratory issue? देखिए, बेसिकली कार्डिक और रेस्पिरेटरी इशू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बोथ लीडिंग टू दी ब्रेथलेसनेस, आपको सांस की प्रॉब्लम देते हैं। बट देयर आर फ्यू हिंट विच कैन इंडिकेट कि आपको ये कार्डिक है, ये रेस्पिरेटरी है। सो अगर आपको रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस है, आप आए हैं पोस्ट कोविड एंड यू आर परसिस्टेंटली किसी भी पोस्चर में बैठे खड़े खांसी हो रही है और सांस फूल रही है, इट इज मेनली ए रेस्पिरेटरी कॉज, मतलब लंग से रिलेटेड है। हाँ, आपको बैठने पे खांसी नहीं चल रही है, आप चल रहे हैं तो ज्यादा खांसी नहीं चल रही, पर जैसे आप लेटते हैं 3-4 घंटे और आपको उसके बाद लेटने के बाद अचानक ही सांस फूलने लग जाती है, या आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है साथ में, दीज आर द फ्यू ब्रीदिंग प्रॉब्लम विच आर एक्चुअली कार्डिक रिलेटेड। इसको हमारी लैंग्वेज में ऑर्थोपनिया बोलते हैं। ऑर्थोपनिया मीन्स आप अगर लेटते हैं और आपकी सांस फूल रही है, इट मीन्स कार्डिक। अगर आप और वो सांस जैसे ही आप बैठते हैं वो आपको ठीक लगता है, बेटर लगता है। सो अगर बैठने पे आपकी सांस बेटर हो रही है और लेटने पे, तो इट इज ए कार्डिक रीजन ऑफ ब्रेथलेसनेस। और अगर आपको वैसे ही कभी भी खांसी चल रही है एंड कफ एंड ब्रेथलेसनेस हो रही है 24 घंटे, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी बैठे बैठे, तो इट्स प्रोबेबली लंग रिलेटेड। बट देयर इज ग्रे जोन, कभी कभी दोनों में मिक्स मैच भी हो जाते हैं, आपको दोनों प्रॉब्लम भी साथ हो सकती हैं। तो यूजुअली 60-70% तो हम डिफरेंशिएट कर लेते, बट 40% इज ए ग्रे जोन। कभी हर पेशेंट कार्डिक भी रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, तो मिक्स ब्रेथलेसनेस भी होती है कई लोग। Right, sir. Thank you very much, sir, for your patient answers, and it was really, really very informative. I would now like to invite upon our CEO, Mr. Vikas Anand, to give vote of thanks to Dr. Rajput. Over to you, Mr. Vikas. Thank you, Dr. Rajput. I know you are extremely busy and getting your time is extremely difficult. आज भी you had to spare time and I am very much grateful to you, sir. ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और आपने सिंपल और इजी मैनर में सबको समझा दिया। नहीं तो व्हेन इट कम्स टू कार्डियो एक फियर फैक्टर आ जाता है कि whether we'll be able to understand or not, but आपने you provided in a very simple and easy manner. So thank you very much, sir. I'm sure हमारे audience, we were live on the Facebook, को बहुत अच्छा लगा. I'm finding lots of comments, very positive comments. Everyone is saying very informative session, easy, simple language. So those similar languages, similar comments are echoing across the Facebook, sir. Thank you very much for your time, sir. This was our session just to ensure we are able to equip our Indians in this difficult time of COVID. And now, जैसे आपने statistics बताया, I think heart is a major problem with COVID patients. Fortunately, it's good that our numbers are less. Could be because of underreporting, but it's definitely a major problem. And I think in this regard, ये आपने इतनी advices जो दी, valuable जो session provide किया, that will definitely help us in our fight with this awareness. I'm sure we'll be able to make Indians equipped with sufficient knowledge to fight this COVID tsunami, sir. Thank you very much for your time, sir. Thank you, Dr. Supriya. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir.